Good afternoon, students. So, students, today I am going to start a second chapter, that is work and energy. In last lecture, we have completed our first chapter, that is laws of motion. The main topics I have explained, that is motion, the concept of motion, distance, displacement, speed, velocity, the two graphs of non-uniform and uniform motions, the concept of uniform and non-uniform motion, the uniform and non-uniform linear motion, then acceleration, and at last the Newton's law of motion. Okay, the concept of momentum, that all we have covered. So now the whatever topic I told you, this all the topics you have to remember. Only this much topic you have to remember. Okay, because this topic is important point in laws of motion chapter. So now today, in today's lecture, I'll just explain the concept of work. Okay, and in next lecture we'll just see the concept of energy. Okay, so today I'm going to explain you the work ka concept, how the work concept is derived in your textbook, that we will see, how the positive work, negative work and zero work to be done, that will be seen in today's lecture. Okay students, so let's start. Okay students, now see the second chapter, that is work and energy. Okay, so let's get started with work and energy. So today in this lecture I'll just explain you the concept of work. Okay, here you can see the girl is writing. Okay, the boy is dancing, the girl is watching TV. Okay, this you can see. Okay, so here someone is just performing physical activity and someone is just performing the mental activity. See, generally any mental or physical activity is referred to as work. कोई भी एक्टिविटी इट इज आइदर मेंटल और इट इज आइदर फिजिकल. मेंटल मतलब दिमाग की एक्टिविटी, जैसे दिस गर्ल इज जस्ट राइटिंग, और समटाइम यू आर जस्ट लर्निंग, समटाइम यू आर जस्ट रीडिंग. सो दिस इज प्रिफर एज दी मेंटल एक्टिविटी. ओके, नाउ फिजिकल एक्टिविटी, सी हियर, this is the physical activity. So see, when we walk or run, the energy in our body is used to do the necessary work. We say that a girl who is studying is working or performing work, but that is mental work. In physics we deal with physical work. Physics में हम we have to consider physical work. Work has a special meaning in physics. So it is defined as work is said to be done when a force applied on an object cause displacement of the object. Okay, basically here you can see here are so many works. Some time that is mental work, sometime that will be physical work. But in physics, when we are just considering about physics, जब हम physics देख रहे हैं, when we are seeing about physics, so we are just consider as physical work. Okay, so basically here you can see the physical work is doing by that man. Okay, now I am giving you one example. Suppose here that is one of the surface. Okay, here I am keeping ball. Okay, यहाँ पे मैंने एक बॉल रख रही हूँ, मैं यहाँ पे बॉल रख रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. ओके, जैसे अभी आप लोग देखिए ये एक स्केल है, स्केल को मैंने आपकी टेक्स्ट बुक पे रख दिया है. So now this object in rest position, this object is in rest position. ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन में है. सपोज मैं पेंसिल का एग्जांपल लेती हूँ. ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको सरफेस पे रख दिया, ये रेस्ट पोजीशन में है. इस पर वर्क कब होगा? When the work will be done, जब मैं क्या करूँगी, इस पर फोर्स अप्लाई करूँगी. तो सपोज मैंने मेरी हाथों से इस पर फोर्स अप्लाई किया, मैंने इसको यहाँ कर दिया. पहले ये कहाँ पे था? यहाँ पे था. अब मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये यहाँ पे आ गया. ओके, तो इसी को बोलते हैं वर्क. कि व्हेन वी विल अप्लाई force on an object, okay,
जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पे और इट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। वर्क कब होगा, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, और जब हम कोई फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे, कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये इस पोजीशन पे था, मैंने फोर्स अप्लाई करके इसको यहाँ रख दिया, तो क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये अपनी प्लेस से चेंज। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जो इनिशियल उसका प्लेस रहता है उससे जब वो फाइनल पे आ जाता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना प्लेस चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इक्वल्स टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एस डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ वर्क। सो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, सी इन दिस पेज। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसको मैंने फोर्स अप्लाई करके यहाँ कर दिया, इसका यहाँ पोजीशन पहले था, फिर ये इस पोजीशन पे आ गया। बट ये कौन से डायरेक्शन में आया, लीनियर डायरेक्शन में, स्ट्रेट आया ना, ये स्ट्रेट आया कि नहीं आया, ओके। तो जैसे ये जो गोल है जिसने यहाँ पे एक पोजीशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे पोजीशन पे लेके आई, डिस्प्लेस करवाया, बट इन लीनियर डायरेक्शन। नाउ हियर यू कैन सी स्टूडेंट, दिस गर्ल ये क्या कर रही है, एक इसका एक टॉय है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से इस टॉय को क्या कर रही है, वो खींच रही है अपनी तरफ, ओके। अब नाउ हियर यू कैन सी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट आ रहा है, नहीं स्ट्रेट नहीं, ये ऐसे आ रहा है, ओके। ये स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, ये एक इस डायरेक्शन में आ रहा है। जिस डायरेक्शन में ये आ रहा है वहाँ पे कौन सा वर्क होगा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2.3 में आपको दिखाया, सपोज ये एक गर्ल है, ओके, यहाँ पे गर्ल है कि, और ये इसका स्ट्रिंग है, जैसे आपने स्ट्रिंग देखा, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ओके। अब ये इसको यहाँ से क्या कर रही है, खींच रही है। अब जब ये खींच रही है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो तुम लोग, ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो बनेगी, ओके। ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग है, इसका स्ट्रिंग के यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, ओके, जैसे आपको यहाँ पे डिनोट किया गया। ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे स्ट्रिंग से जो लड़की खींच रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, जो एंगल आप लोग को दिखेगा यहाँ पे, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा इज ग्रीक वर्ड, थीटा इज नथिंग बट ग्रीक वर्ड। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, एंगल के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एंगल बन रहा है तो यहाँ पे ये एंगल के लिए थीटा वर्ड यूज़ किया। अब देखो यहाँ पे, नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस इंटू हाइपोटेनियस। बेस मतलब ये, और हाइपोटेनियस मतलब दिस इज हाइपोटेनियस लाइन दैट इज जस्ट अपोजिट टू इंक्लाइंड, जस्ट अपोजिट टू परपेंडिकुलर। जैसे आप लोग ये लाइन देख रहे हो, क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, ओके। उसके जस्ट अपोजिट में जो लाइन बनती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस लाइन। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में होगा, ट्रिग्नोमेट्री आप जब पढ़ेंगे ज्योमेट्री में तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि कॉस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, ओके। सबकी वैल्यूज होती है 1, ओके, -1, तो उसका क्या वैल्यू होता है, ओके। तो जस्ट इस लाइन के अब जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसके जो फोर्स, उसकी जो सामने वाली लाइन होती है, ऑपोजिट लाइन होती है, उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। सो दिस इज बेसिकली बेस एंड हाइपोटेनियस, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेस और हाइपोटेनियस, कॉस थीटा। अब बेस में क्या है, बेस में क्या है, वैल्यू क्या है, F1 लिख देंगे। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, F लिख देंगे। सो F1/F। अब मैंने क्या किया, इसको इस साइड में की, तो आपको मालूम है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रूल। अब मैंने इसको क्या किया, इस साइड में लिखा, तो F1 इक्वल्स टू F कॉस थीटा, इसको मैं इस साइड लेके आई, लेफ्ट हैंड साइड में। थर्स अब यहाँ पे देखो F1 इक्वल्स टू F कॉस थीटा। अब मैं बता रही हूँ, बट W इक्वल्स टू FS, W इक्वल्स टू FS होता है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्स द वर्क डन बाय F। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, F जो W हमारा वैल्यू है उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू F कॉस थीटा था, तो F1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू FS के प्लेस पे आ जाएगा F कॉस थीटा S, ओके। F की वैल्यू यहाँ पे F कॉस थीटा मिल रही है हम लोगों को,
तो वही एफ की वैल्यू के यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा एस। ओके, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है इंटू 1, कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1, सो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर कोई भी वर्क हो रहा है, अगर वहाँ पे एंगल बन रहा है उस वर्क में, तो उस जगह पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। अगर स्ट्रेट लाइन में है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर वहाँ पे एंगल बन रहा है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोई भी वर्क पे, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दिया है थीटा की वैल्यू अगर 0 है, 90 है, 180 है, तो कैसे वहाँ पे वर्क होगा। 0 है तो कौन सा वर्क होगा, 0 W इक्वल्स टू एफ एस, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला। ओके, 98 डिग्री है तो यहाँ पे कौन सा वर्क होगा, 0 वर्क होगा। और 180 डिग्री पे है तो वहाँ पे कौन सा होगा, नेगेटिव वर्क होगा, मतलब यहाँ पे वर्क होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 वर्क देखने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ। देखो, अब यहाँ पे क्या किया है, एक ग्लास लिया है, ग्लास के अंदर एक स्टोन डाला हुआ है और स्टोन को एक नीचे रस्सी से बांध दिया, एक स्ट्रिंग से बांधा, और यहाँ पे भी एक नट रखा है। ओके, अब अगर मैं इस नट को यहाँ से खींचती हूँ तो ये जो कप है ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो दिस इज पॉजिटिव वर्क। ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, देखो यहाँ से आया और गिर गया, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है वर्क। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से मैंने इसको खींचा और ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, W इक्वल्स टू एफ एस। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये कप है, इसमें स्ट्रिंग है, सेम प्रोसीजर, बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक मैंने ब्लॉक खड़ा कर दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपेज, जिसको क्या करेगा, रोकेगा। अब अगर जब ये इसको यहाँ से आप लोग खींचोगे तो ये जो ग्लास है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। 180 डिग्री इन द सेंस माइनस एफ एस, कौन सा वर्क होगा यहाँ पे, नेगेटिव वर्क होगा। कौन सा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 0 वर्क। 0 वर्क में बेसिकली क्या होगा, यहाँ से भी स्ट्रिंग हमने बांधा हुआ है, टाई किया हुआ है, यहाँ से भी स्ट्रिंग हमने टाई किया हुआ है। ओके, अब अगर आप यहाँ से खींचोगे और यहाँ से भी खींचोगे तो ये जो ग्लास है वो ये साइड भी नहीं आएगा, लेफ्ट साइड भी नहीं आएगा और राइट साइड भी नहीं आएगा, वो क्या होगा, बीच में ही रुका रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 वर्क। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, when the force and the displacement are in the same direction। यहाँ पे देखो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव वर्क। देन when the force and displacement are in opposite direction, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट ड्यू टू दिस स्टॉपेज, और हम लोग जो बोलते हैं ब्लॉकिंग कर रहा है ये जो ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा बट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा, वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क बोलेंगे। व्हेन द अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट और व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स यहाँ से भी दे रहे हो आप यहाँ से भी, बट कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे ना, ये इससे जैसे आप लोग ने टग ऑफ वॉर गेम देखा होगा, यहाँ पे भी सेम फोर्स है, यहाँ पे भी सेम फोर्स है, दोनों स्ट्रिंग खींच रहे हैं, तो ना तो वो स्ट्रिंग इस साइड आएगी ना तो वो स्ट्रिंग इस साइड आएगी। सेम ये ग्लास भी ना तो इस साइड गिरेगा ना इस साइड फॉल होगा, तो यहाँ पे कौन सा वर्क हो गया, 0 वर्क हो गया। सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दी पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड दी 0 वर्क। ओके, बेसिकली this only explained in this part. Okay, so now in next lecture we will just see the energy part, the definition and concept of energy here. So in next lecture we will see the energy part and this work done wala numerical also. Okay, bye students, take care.